Hello students, today again I am here to take a lecture on the topic or the chapter number 5, the database management using LibreOffice base application. Up to today we have taken the 4 lectures on the same topic. Today we are going to discuss about the form creation. We are discussing about the form creation from the LibreOffice base application. See students, before that, we have discussed about some basic concepts of database management systems. Then afterwards, creation of database tables. Then creation of queries. In that, by using creation of the query by using the wizard as well as by using the design view we have discussed. And today we go for the next database object, that is form object. So how to create a form, that we are going to discuss right now. See students, form is an object. Form is an object which allows entering the data and editing or deleting the existing data in a database table. It consists of the format, style, then widgets like radio buttons, like list boxes that provide the easy and systematic way to insert a record in a database table. Even the form is used to collect the information from the user. So basically फॉर्म क्या है? ये फॉर्म ऑब्जेक्ट के जरिए आप एक फॉर्म क्रिएट करोगे जिसके मदद से आप डेटाबेस में डेटा फिल कर सकते हो. मीन्स यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर and we can store the data in the database file. Okay, so that is a form basically. So how to create the form, उसके basic steps देखिए. Now यहाँ पे एक sentence से पहले form is used to collect the data from the user. Okay, मैं यहाँ पे आपको ये full stop चाहिए इधर. Okay, form is used to collect the data from the user. ये important sentence है, ध्यान में रखिए. Form is used to collect the data from the user. Now how to create the form, उसके step देखिए. Now यहाँ पे might be you people not understanding properly how to create a form because I am explaining that particular in the form of a text format here. But मैं उसका practically करके भी बताऊंगा तो आपको easily understand होगा कि form किस तरह से बनाया जाता है. So first of all we discuss one by one the steps. First step is open an existing database file. From the left pane क्लिक ऑन फॉर्म ऑब्जेक्ट. पहले आपको क्या करना है, आपकी डेटाबेस फाइल जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको ओपन करो. देन उसके बाद लेफ्ट पैन में से, डेटाबेस लेफ्ट पैन में से फॉर्म नाम का ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है. देन सेकंड स्टेप है फ्रॉम द राइट पैन क्लिक यूज विजार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म. विजार्ड नाम का ऑप्शन मिलेगा आपको राइट पैन में टास्क में, उसमें से आपको क्रिएट फॉर्म नाम का ऑप्शन मिलेगा. यूज विजार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है. देन आफ्टरवर्ड्स सिलेक्ट द नेम ऑफ द टेबल, माना जिस टेबल डेटाबेस टेबल के ऊपर आप फॉर्म बनाना चाहते हो वो टेबल को आपको सिलेक्ट करना है. एंड देन शिफ्ट द फील्ड्स फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स, माना वहां पे आपको फॉर्म में कौन से फील्ड विजिबल होने चाहिए, डिस्प्ले होने चाहिए, वो फील्ड जहाँ पे आपने टेबल सिलेक्ट किया उसके बाद जितने भी फील्ड अवेलेबल है वो अवेलेबल फील्ड वहां पे दिखाई देगा. उसमें से आपको कुछ फील्ड्स लेफ्ट विंडो में से राइट विंडो या लेफ्ट जगह से दूसरे राइट जगह में आपको, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट. Okay, hello students. So third step is select the name of the table, then shift the fields from the available field.
list to the field in the form. मीन्स जो फील्ड के ऊपर आपको फॉर्म बनाना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल, आपको अवेलेबल फील्ड वहाँ पे डिस्प्ले होगी। उसमें से जो फील्ड आपको फॉर्म में डिस्प्ले होनी चाहिए वो आपको शिफ्ट करने पड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ऑनलाइन। ओके, देन बाय क्लिकिंग ऑन एरो बटन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। माना आपको वहां पे एक एरो बटन दिया रहता है, जितने भी फील्ड आपको चाहिए उसके जरिए आप वो एरो फील्ड से फील्ड को शिफ्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म फील्ड्स। ओके, दिस इज द थर्ड स्टेप। देन नेक्स्ट है, देखिए फोर्थ स्टेप, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। उसके बाद माना फील्ड आप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। देन फिफ्थ स्टेप है, सिलेक्ट एनी वन आर्ग्यूमेंट फॉर द मेन फॉर्म for placing the control, that is X columnar label left and click on next button। अभी ये आपको जब तक मैं प्रैक्टिकली करके नहीं बताता तब तक आपको इतना इजीली समझेगा नहीं, बट स्टेप याद रखो। सिलेक्ट एनी आर्ग्यूमेंट फॉर द मेन फॉर्म, जो फॉर्म आपको बनाना है वो किस फॉर्मेट में दिखना चाहिए उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे दिए रहते हैं, वो सिलेक्ट करके उसके अंदर के कंट्रोल्स आपको वहाँ पे प्लेस करने हैं। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन आफ्टरवर्ड्स क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। देन सेवंथ स्टेप रहेगा, सिलेक्ट स्टाइल फॉर द फॉर्म। आपका फॉर्म किस स्टाइल में दिखना चाहिए, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आएंगे, वो स्टाइल्स आपको सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। देन टाइप द फॉर्म नेम, फॉर्म के लिए नेम देना होगा एंड देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। देन नेक्स्ट स्टेप है, टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड आइकन प्रेजेंट ऑन द फॉर्म नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है जो फॉर्म ओपन हुआ ना उसमें आपको न्यू रिकॉर्ड नाम का बटन मिलेगा, आइकन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो सो दैट आप न्यू रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो। मीन्स आपने टेबल में पहले समझो 10 रिकॉर्ड भरे हैं, नाउ यू वांट टू फिल मोर रिकॉर्ड इनटू दैट पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल, तो फॉर्म के जरिए भी डेटा आप भर सकते हो, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। मीन्स फॉर्म इज ऑपरेटिंग द एंड यूजर्स। मीन्स देखो वो सेंटेंस बोला था, फॉर्म इज यूज टू एक्सेप्ट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द यूजर्स, वो कंसेप्ट है ये। ओके, फ्रॉम द नेविगेट टूल बार प्रेजेंट एट द बॉटम साइड। ओके, बॉटम साइड में वो आपको नेविगेशन बार रहेगा जहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए बटन रहेगा। Fill up the record and click on Save Record icon. Then click on Close button to close the form window. Following figure will display, means इस तरह से आपको फॉर्म दिखना चाहिए। ये देखिए, तो ये आपका यहाँ पे ये जो बटन है ना, लेफ्ट राइट, ये जितने भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। एंड देन आपको रिकॉर्ड फिल करना है तो लास्ट रिकॉर्ड पे जाइए, देन यहाँ पे रिकॉर्ड फिल कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। सी हाउ टू क्रिएट द फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस 7 में गया, नाउ यहाँ पे बेस में गया। नाउ बेस में भी आपने कौन सा फाइल बनाया था वो फाइल अपन ओपन कैसे करना है वो आज मैं वहां से दिखाता हूँ। यहाँ से पहले एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ, उसके जरिए फाइल ओपन करके भी बताता हूँ। ओके, नाउ सी द लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट हियर। नाउ यहाँ पे हमें नया डेटाबेस क्रिएट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, ओपन करना है जो ऑलरेडी डेटाबेस फाइल बनाई हुई है। सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन। नाउ रिसेंटली यूज कौन सा था हमारा, 12th कॉमर्स नाम का फाइल था, बराबर। अगर ये 12th कॉमर्स का फाइल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पे जाना है ओपन। ओपन में जाएंगे तो आपका डेटाबेस फाइल आपने कहाँ पे सेव किया था वो आपको लोकेशन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये वाली फाइल, इसको सिलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। जैसे ओपन पे क्लिक किया तो आपका 12thcommerce.odb नाम का ये फाइल ओपन हुआ, डेटाबेस फाइल जो कि हमने ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था। ना हमें फॉर्म ऑब्जेक्ट सीखना है। हमारा टेबल देखिए क्या बनाया था हमने, टेबल टेबल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट इन्फो, ये वाली टेबल थी। उसके अंदर मैं ओपन किया जिसके अंदर 4 रिकॉर्ड फिलअप किए हुए, आईडी नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फोन नंबर्स। नाउ आईडी नंबर 10, 11, 12, 13 वाला हमने डिलीट किया था, 14 अवेलेबल है। नाउ ये मैं क्लोज करता हूँ। ये टेबल के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म। नाउ फॉर्म ऑब्जेक्ट लेफ्ट पैन में से सिलेक्ट करना पहले आपका स्टेप था।
नाउ उसके बाद क्रिएट अ फॉर्म बाय यूजिंग द विजार्ड, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बाय यूजिंग द विजार्ड, ये ऑप्शन टास्क में से सिलेक्ट करना है। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट और क्रिएट द न्यू फॉर्म। नाउ क्या क्या करना है अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये ओके कर दीजिए। नाउ देखिए, आपको पहले फील्ड सिलेक्शन नाम का स्टेप था, किसके ऊपर आपको फॉर्म बनाना है, आइदर टेबल के ऊपर या क्वेरी के ऊपर। हमको टेबल के ऊपर क्रिएट करना है तो हम टेबल सिलेक्ट करेंगे। टेबल का नाम था हमारा स्टूडेंट इन्फो, ये सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे अवेलेबल फील्ड है एंड ये फील्ड इन द फॉर्म, कौन से फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले करना है आपको फॉर्म में, तो वो आप अवेलेबल फील्ड समझो सबके सब चाहिए तो आप यहाँ पे ये देखो, ये एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो सब फील्ड आपके फॉर्म के लिए भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आपको लगता है एक आधा फील्ड नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिंगल बटन है लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट एरो, ये सिलेक्ट करोगे वो वापस आ जाएगा। वापस वो चाहिए सिलेक्ट करो, यहाँ से ऐड करो। वो फील्ड आपका इधर होना चाहिए, है ना, तो आप सिलेक्ट करो तो ऐसा ऊपर लेके जा सकते हो उसको। इज इट क्लियर, समझ में आया? देन आपको क्या करना है नेक्स्ट, फिर सेटअप अ सब फॉर्म, बना एक फॉर्म के अंदर दूसरा सब फॉर्म क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे ये स्टेप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। सो अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करोगे, अरेंज द कंट्रोल्स। अरेंज, ये अवेलेबल कंट्रोल्स है या फॉर्म के आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फॉर्म आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि ये सिलेक्ट किया तो इस तरह से दिखाई देगा, ये सिलेक्ट किया तो ऐसा दिखाई देगा फॉर्म। टेबल सिलेक्ट किया या ऐसे सिलेक्ट दिखाई देगा, ये सिलेक्ट करो या ऐसे दिखाई। समझो ये पहला मैं सिलेक्ट करता हूँ या ये दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, राइट दैट मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, ये देख लो पीछे उसका व्यू दिखाता है, पीछे उसका व्यू दिखाता है आर्ग्यूमेंट्स में, बराबर। इधर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन चाहिए कि राइट अलाइनमेंट चाहिए, वो भी दिखाई देता है। समझो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर मैं यहाँ पे क्या क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देन सेट डेटा एंट्री, सेट डेटा एंट्री मीन्स यहाँ पे देखो एक है पहला रेडियो बटन में, द फॉर्म इज यूज ओनली फॉर एंटरिंग न्यू डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा विल बी नॉट बी डिस्प्लेड। माना पहले जो डेटा लिखा हुआ है हमने टेबल में वो दिखाई नहीं देगा, बट नया डेटा ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शन ये बताता है। वाइल यहाँ पे देखो द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल द डेटा, मुझे पूरा डेटा देखना भी है एंड आई कैन अलाउ टू ऐड न्यू रिकॉर्ड आल्सो, तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। नाउ यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स है फॉर्म की, आपको कैसा, ये ऐसा फॉर्म चाहिए या ऐसा चाहिए, देखो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आपको व्यू दिखाई दे रहा है सब, बराबर है। तो यहाँ पे ये स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो आप, जैसे कि मैं ये ऑरेंज वाला स्टाइल लिया, ठीक है। देन यहाँ पे उसको बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर, 3D लुक चाहिए, फ्लैट चाहिए, वो ले सकते हो, ठीक है। मैंने 3D लुक लिया। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देन सेट द फॉर्म नेम, नाउ मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्टूडेंट इन्फो फॉर्म, ठीक है ना। देन वर्क विथ दिस फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म, नहीं मुझे यही फॉर्म के साथ काम करना है। देन मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो आपको ये देखो इधर फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस तरह से आईडी फील्ड दिखाई दे रहा है। नाउ देखो यहाँ पे रिकॉर्ड 1/4, पहला रिकॉर्ड ये दिख रहा है, आपको आगे वाला रिकॉर्ड देखना है, ये दूसरा रिकॉर्ड ऊपर देखिए इधर दिख रहा है दूसरा, इधर रोल नंबर 2 आया ना, लाइक दैट। मैं और एक आगे जाऊँ तो तीसरा रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, है ना। आपका यहाँ पे मैं जूम बढ़ा दूँ तो आपको पता चलेगा, इधर ये देखिए, हाँ अभी पता चल रहा है, ये देखो सब रिकॉर्ड दिख रहे हैं, लाइक दैट। अभी मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जाता हूँ, ये देखो लास्ट रिकॉर्ड, इधर लास्ट रिकॉर्ड बटन है। नाउ यहाँ पे देखो ऐड न्यू रिकॉर्ड नाम का बटन है ना। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन सो दैट यू कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे आईडी नंबर देता हूँ, सपोज मैं 15 नंबर आईडी, रोल नंबर है उसको समझो 50। देन स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम है सपोज कैलाश, एड्रेस है उसका से सपोज ठाणे, एंड उसका फोन नंबर है सपोज ये उसका फोन नंबर है। ये रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जैसे यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कीजिए तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। देखो इधर 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं, आप 6th वाला रिकॉर्ड देखना है, ये देखो ये
पहला रिकॉर्ड है, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिख रहा है, एंड सिक्स्थ रिकॉर्ड एंटर करने के लिए देखो एम्प्टी दिखाई दे रहा है। तो ये फिफ्थ रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड में ना, इस तरह से आप न्यू रिकॉर्ड फॉर्म के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। नाउ मैंने फॉर्म के जरिए डेटा भरा, वो डेटा वाकई अपने डेटाबेस टेबल में स्टोर हुआ है कि नहीं, आई वांट टू चेक दैट। सो मैं अभी ये फॉर्म को सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव फॉर्म, आप कंट्रोल यस करेंगे तो भी चलेगा, कंट्रोल यस, एंड देन मैं इसको आउटपुट को क्लोज कराऊँ, then go to the table object, then select the table, open it, see here id number 50, 15, roll number 50, कैलाश थाने, एंड ये उसका फोन नंबर, ये अभी अभी रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था दिस। समझ में आया? तो किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हैं अच्छी तरह से समझ में आया, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली अभी यहाँ पे आपको बता दिया। फिर से शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, और यहाँ पे देखो हमने एक फॉर्म बनाया था अभी, स्टूडेंट इनको फॉर्म, और एक बार बताता हूँ कैसे फॉर्म बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देन यूज विजार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म, देन सिलेक्ट अवेलेबल फील्ड, है ना। तो यहाँ पे समझो मैं टेबल लेता हूँ, टेबल के ऊपर के सब फील्ड चाहिए मुझे, नेक्स्ट करूंगा, देन यहाँ पे सब फॉर्म मुझे चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करो, देन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या सिलेक्ट करना है, सपोज आपको ये चाहिए, चलो ये लेता हूँ मैं अभी, देन नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे ये द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे समझो ये डार्क कलर लो, लाइट ग्रे लो, चलो ये डेट लेता हूँ अभी, नेक्स्ट करो, एंड देन यहाँ पे फॉर्म का नाम दूँ, अभी फॉर्म 1 दिया है ना, स्टूडेंट फॉर्म 1, स्टूडेंट इन्फो फॉर्म 1, देन क्लिक ऑन फिनिश, ये हुआ फॉर्म। ये देखो पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड सिक्स्थ रिकॉर्ड में ऐड करना चाहता हूँ, तो सिक्स्थ पे एंट्री पे जाओ, और यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट करना शुरू कर सकते हो, या फिर फिफ्थ रिकॉर्ड पे है तो ऐड न्यू रिकॉर्ड इधर क्लिक करना है, तो भी आप सिक्स रिकॉर्ड पे जाओगे। और आईडी नंबर 16 दिया मैंने, देन यहाँ पे क्लिक, रोल नंबर समझो 51 दिया, स्टूडेंट का नाम दिया से सपोज आकाश, से एड्रेस उसका लिखा मैंने से अंबरनाथ, एंड देन यहाँ उसका फ़ोन नंबर लिखा मैंने, ये उसका फ़ोन नंबर है समझो, एंड देन मैंने क्या किया, सेव किया उसको, रिकॉर्ड को सेव किया, इधर सेव रिकॉर्ड, ये सेव फाइल के लिए होता है, ये दिस इज सेव रिकॉर्ड। देखो मैं फिफ्थ रिकॉर्ड पे गया, फोर्थ पे गया, फिफ्थ, सिक्स दिख रहा है रिकॉर्ड, इस तरह से फॉर्म क्रिएट करना है आपको, समझ में आया अच्छी तरह से। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव, फाइल के अंदर से उससे हो गया। सो देखिए अपने प्रेजेंटेशन में फॉर्म किस तरह से बनाते हैं उसका व्यू दिखाया मैंने, इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट जनरेशन। क्या है? रिपोर्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। नाउ दिस इज अगेन न्यू टॉपिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय रिपोर्ट, आप लोगों को भी इसके बारे में पता है, एक जनरल मीनिंग से, सपोज आपने 10th पास किया है, 10th में अपने बोर्ड का एग्जाम दिया, जितने भी पेपर लिख के अच्छे बुरे जो भी है उसका रिपोर्ट कार्ड बोर्ड की तरफ से एक सिंगल पेपर पे पूरा रिपोर्ट आया आपको, दैट इज अ रिपोर्ट। आपने जो काम किया उसका लेखा जोखा, उसका रिपोर्ट एक टेबुलर व्यू में, टेबुलर फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट कर सकते। अंडरस्टूड? ओके। नाउ मैं आपको रिपोर्ट के बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। फर्स्ट, द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन in an organized readable format as per the user's requirement is called as a report। 10वीं का रिजल्ट एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, रीडेबल फॉर्मेट में लिखा गया, यूजर से रिक्वायरमेंट जिस तरह से होता है वैसे फॉर्मेट में लिखा गया वो रिपोर्ट का, जो कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होता है, रीडेबल भी होता है। कोई भी रिपोर्ट अगर रीडेबल नहीं तो उसका कोई यूज नहीं, देयर इज नो यूज। ओके, so various complex reports can be generated that can help in taking the decision by the management or the authorities। Report is represented or the representation of the data in the printed form। Report is representation of the data in the printed form। ये fill in the blanks या true false के लिए sentence आ सकता है, अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। So
हाउ टू क्रिएट दैट रिपोर्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो उसकी स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप इज ओपन द डेटाबेस। अगेन आपने जो डेटाबेस फाइल बनाई है उसको डेटाबेस को ओपन करो एंड इन द लेफ्ट पैन click the report object. From the left pane you have to click the report object. Then from the right pane click use wizard to create report. ये वाली एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी है, use wizard to create the report. Then select the name of the table, shift the field from available fields to the fields in the report you want to record. Then by clicking on arrow, this is done by clicking on the arrow and then click on next button. somehow step वैसा ही है, मैं करके भी बताता हूँ। नेक्स्ट है लेबल्स फॉर द फील्ड कैन बी चेंज। आप फील्ड के लिए लेबल भी चेंज कर सकते हो विद द न्यू लेबल्स टू डिस्प्ले इन द रिपोर्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। बना अगर आपके रिपोर्ट में एक आधे फील्ड का नाम दूसरे वे में चाहिए, दूसरा नाम चाहिए, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है इफ यू वांट टू सी द रिकॉर्ड ग्रुप वाइज, माना एक्स सिटी वाइज, सपोज जो बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए वो सिटी वाइज ऐसा वर्ड यूज किया क्योंकि सिटी नाम का वहाँ पे कॉलम है आपके बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए वो ऐसा वर्ड दिया। एड अ ग्रुपिंग लेवल, देन क्लिक ऑन द फील्ड, क्लिक ऑन एरो बटन एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। मैं आपको करके बताता हूँ तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। देन सिलेक्ट द फील्ड टू सॉर्ट द डेटा। रिपोर्ट में एक आधा फील्ड आपको सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। देन चूज द लेआउट और द ओरिएंटेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। मीन्स आपका रिपोर्ट किस तरह से दिखना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, वो आप सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। देन टाइप द टाइटल फॉर द रिपोर्ट एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। Then report will be displayed in the read-only mode in the form of LibreOffice Writer file. वो फाइल LibreOffice Writer के फाइल के फॉर्मेट में रहेगा। Then click on close button to close the report window. After report generation, screen will be displayed as follows. जैसे रिपोर्ट जनरेट होता है आपको इस तरह से रिपोर्ट दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे सिटी वाइज रिपोर्ट बनाई थी तो सिटी ये फील्ड पहले दिखता है एंड देन बाकी ये अरेंज किया हुआ फील्ड है। तो हम भी देखते हैं हमने जो फाइल बनाई थी उसके अंदर हमारा रिपोर्ट किस तरह से जनरेट होगा। अभी अभी हमने जो फाइल बनाई थी वो डेटाबेस फाइल मेरे ख्याल से हमने बंद किया है। चलो हम यहाँ पे वो फाइल दिखाई देगी 12th कॉमर्स। मैं बताता हूँ अभी रिपोर्ट कैसे बनानी है, केयरफुली अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए। नाउ सी स्टूडेंट्स, you first of all you have to click on report object to create a report. देन आफ्टरवर्ड यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट, ये टास्क पे आपको क्लिक करना है, दिस एक्टिविटी पे क्लिक करना है। देन आफ्टरवर्ड्स द रिपोर्ट फॉर्मेशन विल स्टार्ट। देयर आर सर्टेन स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड सिलेक्शन स्टेप। नाउ टेबल या क्वेरी के ऊपर रिपोर्ट बनाना है, यू मस्ट सिलेक्ट द टेबल क्योंकि हमारे सब फील्ड टेबल में अवेलेबल है फिलहाल। इवन वी कैन क्रिएट रिपोर्ट और फॉर्म ऑन द क्वेरी आल्सो, बट हम टेबल के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि टेबल के अंदर हमारा पूरा इंफॉर्मेशन है। देन अवेलेबल जितने भी फील्ड्स है वो एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, लाइक दैट, या फिर पूरा सिलेक्ट करके ये डबल हेड एरो दिखता है ना उसके जरिए आप यहाँ पे रिपोर्ट फील्ड में जो फील्ड चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये फील्ड के नाम दिए हुए हैं एंड ये फील्ड के लेबल दिखाई देते हैं, ये फील्ड के नेम है और उसका नाम क्या है ये दिखाई देता है। किसी फील्ड का नाम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एड्रेस है ना, ये एड्रेस की जगह पे मैं स्टूडेंट एड्रेस ऐसा लिखता हूँ, STU मतलब स्टूडेंट एड्रेस सपोज है ना, ये आपका फील्ड होना चाहिए। हमारा टेबल में वही फील्ड रहेगा एड्रेस, बट यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस करके मैंने नाम दिया, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल, एक आधा ग्रुपिंग लेवल, सपोज आईडी फील्ड के हिसाब से मुझे रिकॉर्ड दिखना चाहिए तो उसको ग्रुपिंग लेवल पे आईडी दिया मैंने, बस एक फील्ड। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पे सॉर्टिंग प्रॉपर्टीज, आपको एक आधा आउटपुट सॉर्टिंग वे में चाहिए तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हो इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ पे
सॉर्ट आईडी तो ऑलरेडी हो गया क्योंकि मैंने उसको ग्रुपिंग लेवल पे आईडी दिया है। देन बाय एक आधा फील्ड आपको से सपोज स्टूडेंट का नाम वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग सिलेक्ट किया। आए समझ में? इधर क्या है, एड्रेस नहीं, मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, दिया मैंने। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट। देन यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स है, फ्रॉम दैट यू कैन चेक एनी लेआउट। आपको पीछे व्यू भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, देखिए किस तरह से आपका वो रिपोर्ट दिखेगा लाइक दैट। मैं फॉर एन एग्जांपल टेबुलर फॉर्मेट में लेता हूँ, कॉलम वाइज नहीं। हाँ, कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। ओके, चलो कॉलम वाइज फॉर्मेट लेता हूँ। देन क्लिक ऑन, और यहाँ पे ओरिएंटेशन देखो, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट मीन्स ऐसा वर्टिकल रिपोर्ट आएगी, लैंडस्केप मीन्स हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ रिपोर्ट पेपर दिखाई देगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्रिएट रिपोर्ट एंड उसका टाइटल देना है स्टूडेंट इन्फो रिपोर्ट, ये उसको नाम दिया। देन क्लिक ऑन फिनिश, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, देखिए ये आपकी रिपोर्ट है। आईडी फील्ड के हिसाब से मैंने ग्रुपिंग लेवल दिया, आईडी नंबर 10, ये उसका रिपोर्ट का डिटेल है। रोल नंबर 1 था, स्टूडेंट नेम अजय। देखो मैंने स्टूडेंट नेम को क्या किया था मालूम है, सॉर्टिंग किया था असेंडिंग ऑर्डर। तो ए नाम से शुरू होने वाला कोई बच्चा है तो वो पहले दिखाई दिया, अजय इधर दिखाई दिया, फिर रवि है, फिर कैलाश है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कैलाश। स्टूडेंट नेम इस तरह से, कैलाश आया, रमेश ऊपर आया बेटा, इधर आकाश, आकाश उधर बना, सॉर्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है, होना चाहिए। बट ये इस तरह से रिपोर्ट है। ओके, मैं दोबारा एक बार बना के बताता हूँ रिपोर्ट। ये देखो यहाँ पे रिपोर्ट, देन यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इनफो टेबल लिया, देन मैंने यहाँ पे अवेलेबल सब फील्ड लिया, नेक्स्ट किया, ग्रुपिंग लेवल नहीं, हाँ इधर स्टूडेंट एड्रेस, एस टी यू, स्टूडेंट एड्रेस ऐसा फील्ड का नाम चेंज किया। देन ग्रुपिंग लेवल पे मैंने क्या दिया, ये आईडी फील्ड दिया, देन नेक्स्ट किया। देन मैंने, देखो समझो, ये रोल नंबर दिया, sorry student name for ascending, and then by the we can say the roll number in ascending, बस दो दो कंडीशन दे दिए, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करो, देन आपका ये टेबुलर फॉर्मेट में लिया सपोज, देन नेक्स्ट स्टूडेंट इन फॉर रिपोर्ट 1, एंड देन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिनिश। ये देखिए रोल नंबर वाइज अरेंज हुआ, ये रोल नंबर है 10 11 12, या असेंडिंग हुआ ना, 14 15 16, वेरी गुड। एंड आपका एड्रेस में देखो स्टूड एड्रेस आया, ये मैंने फील्ड का नाम चेंज किया था रिपोर्ट के लिए, तो वैसा आया ना, एकदम परफेक्ट आया हुआ है। स्टूडेंट नेम अजय रवि कैलाश, वो वैसा ही आया है, ठीक है। उसने रोल नंबर को सॉर्टिंग किया हुआ है इस तरह से, या आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो यूजिंग द लिब्रियोफिस बेस। अंडरस्टूड? तो यही पे हम थे एक्चुअली, इस तरह से रिपोर्ट्स कैसी जनरेट हो गई है, देखिए बराबर। नाउ स्टेप टू क्रिएट द रिपोर्ट इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू के जरिए रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है बना, देखिए। पहला स्टेप है ओपन एनी सेव्ड डेटाबेस, क्लिक ऑन रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट एंड इन द राइट पैन क्लिक ऑन द क्रिएट रिपोर्ट इन डिजाइन व्यू। देन from the right side setting window can be made on or off by clicking the setting button from the toolbar, and of the window click the data tab, and for content select the table name or any saved query, माना टेबल के ऊपर भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो या क्वेरी के ऊपर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। ओके, देन अ स्मॉल विंडो विल appear, click on field name and click on insert button, then close that window. Here we have selected the marks
table and roll number, physics, math, chemistry fields from the same table. ये आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया उस हिसाब से ये फील्ड नेम वहाँ पे बताया और कुछ नहीं. ओके. देन उसके बाद now calculate the total marks. Draw a table and text box below all the fields. Change the label property of the table as a total. Click on text box for and from setting window click on the data tab. Set the data type field value. ये कितना भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ वो समझ में नहीं, जब तक हम करके नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा. ओके. सो सेम है, जैसी प्रोसीजर विजार्ड के जरिए वैसे डिजाइन व्यू में भी आप कर सकते हो. ओके. सो इस तरह से आप यहाँ पे डिजाइन व्यू में भी आप क्रिएट कर सकते हो रिपोर्ट्स. ओके. सो सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है. स्मॉल प्रेजेंट बटन प्रेजेंट aside of the that field the function will start. Select the sum function, then click on next button. Select the field name to be used for addition by clicking on icon present on the right side of the text box and click on OK button. इस तरह से आप वो स्टेप कर सकते हो. Then we can give some title for the report in the page header section by using the label control and changing its label property is to be required for the title. Okay. Then see the output by clicking on the execute report, run report button on the standard toolbar. Then output will be displayed in the LibreOffice Writer file. The window is in the read only mode, but if you want to edit, then it can be done with the help of click on edit document button that will appear in the blue ribbon at the top of the report and save it. It will save as a writer file. Report can be saved for further use or can be printed to make the hard copy. Okay. So in this way आपका एक रिपोर्ट जनरेट किया जा सकता है कि डिजाइन व्यू के जरिए, डिजाइन व्यू ऑप्शन. ओके. तो ये यहाँ पे वो आपको विजुअलाइजेशन दिया है. ये देखो इस तरह से रिपोर्ट बन जाती है. तो ये डिजाइन व्यू के जरिए रिपोर्ट कैसी बनती है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली क्या करने वाला हूँ कि आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ. वो असाइनमेंट हम खुद साथ में करेंगे, आप भी देखेंगे, मैं करके बताऊंगा. सो दैट आपको टेबल क्रिएट करना, क्वेरी क्रिएट करना, देन फॉर्म क्रिएट करना, देन रिपोर्ट भी क्रिएट करना, ये सब चीजें एक साथ मैं समझाऊंगा. तो आप अच्छी तरह से डेटाबेस के अंदर मैनेजमेंट कैसे की जाती है वो देख पाओगे, सीख पाओगे. ओके. अंडरस्टूड. तो ये देखो ये रिपोर्ट जो बनाई गई है वो रिपोर्ट है, जिस तरह से स्टेप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं आपको ये सब असाइनमेंट के जरिए बेटर समझाऊंगा कि यहाँ पे खाली लिखा है प्रेजेंट किया हुआ उसके जरिए अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा. बट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय यूजिंग द असाइनमेंट्स. ओके. सो टुडे विल स्टॉप हियर एक्चुअली. तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटा मॉडल ये कंसेप्ट रहेगा. बट उससे पहले हम टेबल क्रिएशन, क्वेरी क्रिएशन, फॉर्म क्रिएशन एंड रिपोर्ट क्रिएशन के ऊपर असाइनमेंट का लेक्चर लेंगे. ओके. सो अप टू दिस टुडे विल स्टॉप हियर. ओके.